हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने इससे पीछे टॉपिक डिस्कस किया था एस ब्लॉक एलिमेंट्स के ऊपर कुछ एमसीक्यूज डिस्कस किए थे। टोटल 9 हमने डिस्कस किए थे। अब उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आगे के कुछ और एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 10। Which of the following statement is false? A is the strontium decomposes water radially than the beryllium. B option is the barium carbonate melts at a higher temperature than the calcium carbonate. C option is the barium hydroxide is more soluble in water than the magnesium hydroxide. And the D option is the beryllium hydroxide is more basic than the barium hydroxides. आपको 4 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, इनमें से कौन सी वाली स्टेटमेंट है जो कि फॉल्स है, गलत स्टेटमेंट है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है दैट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। इसमें ऑप्शन बी में बोला है कि बेरिलियम हाइड्रोक्साइड इज मोर बेसिक देन द बेरियम हाइड्रोक्साइड। ये गलत है। जो बेरियम ऑक्साइड है दैट इज लेस बेसिक देन द बेरियम हाइड्रोक्साइड। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड इज लेस बेसिक देन द बेरियम हाइड्रोक्साइड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट साइज? Na पॉजिटिव, Na नेगेटिव, कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें से कौन से वाले का बड़ा साइज होएगा? ऑब्वियसली Na पॉजिटिव का लार्ज साइज होगा इसमें, क्योंकि इसमें आपके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। Compared with the alkaline earth metals, the alkali metal exhibits option A smaller ionic radii, B highest boiling point, C greater hardness, D is the lower ionization energy. इसमें से आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? The correct option is D. Because of the large size and the smaller nuclear charge, the alkali metals have low ionization potential relative to alkaline earth metal. इस वजह से जो ऑप्शन डी है दैट इज द करेक्ट आंसर, लोअर आयोनाइजेशन एनर्जी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। Which one of the following properties of the alkali metals increases in magnitude as the atomic number rises? जैसे जैसे atomic number बढ़ता रहेगा, इनमें से कौन सी वाली प्रॉपर्टी है जो कि इंक्रीज करेगी? ऑप्शन ए आयनिक रेडियस, बी इज द मेल्टिंग पॉइंट, सी इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डी इज द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। विच इज द करेक्ट आंसर? इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन A, that is the ionic radius. Within a group, an ionic radius increases with the increase in the atomic number. The melting point decreases down the group due to the weakening of the metallic bond. और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है that and the first ionization energy also decreases down the group. जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है, ये आपकी नीचे जाते जाते डिक्रीज करेगी और मेल्टिंग पॉइंट भी आपका डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता रहेगा। सिर्फ आयनिक रेडियस ही है जो कि आपके पास इंक्रीज करती रहेगी डाउन द ग्रुप। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। The question number 14 is in Kastner-Kellner cell for production of the sodium hydroxide. Option A, barium is electrolyzed with the PT electrodes, and option B is the barium is electrolyzed using the graphite electrodes. C, molten sodium chloride is electrolyzed, and option D is the sodium amalgam is formed at mercury cathode. Out of these 4 options, which is the correct option? The option number D is the correct option, that in the Kastner-Kellner cell, sodium amalgam is formed at the mercury cathode. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। Which of the following statements is incorrect? Incorrect बतानी इनमें से कौन सी है? ऑप्शन ए है pure sodium metal dissolves in liquid ammonia to give the blue solution. Option B, sodium hydroxide reacts with the glass to give the sodium silicate. Option C,
Aluminium react with excess sodium hydroxide to give the aluminum hydroxide, and the option D is the NaHCO3 on heating give Na2CO3। इनमें से जो गलत वाली स्टेटमेंट है वो कौन सी है वो आपको बतानी है। तो इसमें जो रॉन्ग स्टेटमेंट है दैट स्टेटमेंट इज सी इज योर रॉन्ग स्टेटमेंट। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। Which of the following oxides is not expected to react with the sodium hydroxide? कौन से नहीं करते हैं? Is the calcium oxide, B is the silicon oxide, C is the beryllium oxide and D is the boron oxide। इनमें से इन चारों में से कौन से वाला है which is not react with the sodium hydroxide? क्वेश्चन नंबर 16। इसमें आप ध्यान से देखिए, जो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो एक स्ट्रॉन्ग एल्कली है जो कि किसी न किसी एसिड के साथ ही रिएक्ट करेगा। ओके, तो इन तीनों में से जो बी, सी एंड डी है ये तीनों के तीनों एसिड्स हैं, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड इन तीनों के साथ रिएक्ट करेगा। सिर्फ जो ऑप्शन ए है कैल्शियम ऑक्साइड, ये हमारा एसिड नहीं है, ये हमारा बेसिक ऑक्साइड है। तो ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है सिर्फ हमारा कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। सो ऑप्शन 16 इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 17। Question number 17 is, in which of the following processes fused sodium hydroxide is electrolyzed at a 330 degree centigrade temperature for extraction of sodium? Option A is the Kastner process, D is the Downs process, C is the cyanide process and D is the both B and C। इन चारों में से कौन से वाला प्रोसेस करेक्ट है जिसमें आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड इलेक्ट्रोलाइज हो जाती है 330 डिग्री टेम्परेचर पे, जिससे फिर हम सोडियम को एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं, सोडियम प्रोड्यूस कर पाते हैं। सो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है दैट ऑप्शन इज ए, दैट इज द कैस्टनर प्रोसेस। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। In aqueous solution of the sodium carbonate absorbs NO and NO2 to give A ऑप्शन है आपके पास Ca2 प्लस NaNO3, B ऑप्शन है Ca2 प्लस NaNO2, C ऑप्शन है NaNO2 प्लस CO एंड D ऑप्शन है NaNO3 प्लस CO। इनमें से आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन है दैट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। इसका रिएक्शन आएगा इस तरीके से करके कि Na2CO3 प्लस NO प्लस NO2 ये आपको देता है इट गिव्स 2NaNO2 प्लस CO2। ठीक है, सो जो आपका करेक्ट ऑप्शन है दैट ऑप्शन सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द फ्यूजन मिक्सचर? फ्यूजन मिक्सचर में से किसको बोलते हैं? ऑप्शन ए इज द मिक्सचर ऑफ द Na2CO3 प्लस NaSCO3, बी ऑप्शन इज द Na2CO3 10H2O, ऑप्शन सी इज द मिक्सचर ऑफ द K2CO3 प्लस Na2CO3 एंड ऑप्शन डी इज द NaHCO3। करेक्ट ऑप्शन इसमें से कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, करेक्ट ऑप्शन इज द ऑप्शन सी, दैट इज मिक्सचर ऑफ द K2CO3 एंड Na2CO3। इसको हम फ्यूजन मिक्सचर बोलते हैं, याद रखिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। वॉशिंग सोडा हैज़ फार्मूला। वॉशिंग सोडा का कौन सा वाला फार्मूला होता है? Na2CO3 7H2O, Na2CO3 10H2O, Na2CO3 3H2O, Na2CO3। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है दैट ऑप्शन इज बी, Na2CO3 10H2O। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है।
तो ये वाला वीडियो हमारा यहीं तक का था। अभी हम आगे नेक्स्ट वाले टॉपिक में आगे 21 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आप इसमें से चेक करके दिखाइए कि आपको कितने आंसर इसमें से आते हैं, कितनी अच्छे से आप प्रिपेयर कर चुके हैं टेस्ट के लिए। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको सही लगता है, थोड़ा बहुत भी आपको हेल्पफुल लगते हैं मेरी वीडियो, देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।